Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out our new lecture in this series, in this beautiful series of economics that is a wonderful initiative of Udan IAS. Acha. To be more specific, in the last of the session we had covered a bit of kya money, types of money and all those kind of things. To be more specific, now I wanted to shift to banking wala part है ना. Money we had done, we have understood the basic concepts of money, what are the types of money that are out there है ना. So now our thing basically becomes that how we can अंडरस्टैंड द बैंकिंग पार्ट. ठीक है ना. अच्छा, तो बैंकिंग में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बैंकिंग द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि व्हाट आर दीज बैंक्स ऑल आर डूइंग एंड व्हाट आर हाउ आर दे आर बीइंग रेगुलेटेड है ना. तो आज की बात करेंगे थोड़ा सा, वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एंड ऑल दिस दैट काइंड ऑफ क्या ब्रॉड फ्रेमवर्क. सी, if I'm saying regarding banking, take banking may just like every of the industry has a certain kind of regulator. ठीक, एवरी ऑफ द इंडस्ट्री हैज सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेटर. सिमिलरली बैंक्स का भी एक क्या पापा बैंक होता है जिसको मैं बोलता हूँ, एंड दैट पापा बैंक इज व्हाट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक, ऑब्वियसली यू नो दैट इज वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग्स. ठीक, whenever I am talking about banking as a function, ठीक, there will be different of the banks that are out there. ठीक, what I am doing, I am क्या depositing my money inside these banks. ठीक, I am depositing my money inside these banks, and based upon their efficiency, what they are doing, they are investing this money at subsequent of the investment portfolios, or subsequent of the location, so that their money, if I'm talking about their money, enhances. take their money increases, and based on that money, whatever is out there, take whatever the left is out there, some portion they are giving it to us. ठीक, अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, बैंक आई हैव डिपॉजिटेड माई मनी इनटू बैंक. ठीक, अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल बैंक इज ऑफरिंग मी व्हाट, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 3 to 4% का है, 3% का मान लो इंटरेस्ट है. ठीक है, सेविंग इंटरेस्ट रेट क्या अराउंड 3% के आसपास. ठीक, and when they will be extending this entire of the loan to some other of the people who are out there. For example, किसी को कार लोन चाहिए, किसी को क्या बाइक लोन चाहिए, किसी को होम लोन चाहिए. ठीक, ठीक, so when they are क्या extending this kind of thing to these of the people, take what they actually want, ठीक है, in return they are getting some sort of amount. ठीक, it could be if I'm saying, it could be what, it could be जैसे होम लोन है तो it will be क्या अराउंड 10% के आसपास एंड दोज काइंड ऑफ थिंग. एजुकेशन लोन है तो और ज़्यादा होगा. ठीक है, it could be 17-18% as well. ठीक, so इस टाइप से they are charging, and whatever the difference that is out there, 10 minus 3 7 will be their earning. इस टाइप से the banks are majorly क्या functioning. अच्छा, in order to understand these kind of things, take what is happening. अच्छा, एक चीज याद रखना कि when I'm trying to understand that every person is basically guided by his profit motive, है ना. ठीक, तो similarly we need to control the bank that they should not be going beyond what is expected from them, है ना. And that is why there is need to regulate this banking sector. And when I am talking about regulation of this banking sector, I am more concerned about what, I am more concerned about Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India, if I'm talking about, will be what, will be a kind of regulator for this entire of the banking sector, will be a regulator for this entire of the banking sector. अच्छा, तो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, एक दो क्या फंक्शंस देख लेना भैया, आरबीआई क्या करता क्या है, what these are the things that he is doing. take number first, take what does RBI do. take, it can issue money. ठीक है, it can issue money. ठीक, अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो कॉइन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ठीक, दीज कॉइन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ना, टेक आर दिस नोट्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दीज आर क्या योर प्रिंटेड बाय व्हाट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन ये जो कॉइन्स होते हैं ना, दीज आर समवॉट क्या मिंटेड बाय व्हाट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. एक छोटी सी चीज ही क्या आप याद रखना. ठीक, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, विल बी सेइंग दैट दे आर क्या, दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ मनी, है ना. नोट पे देखा होगा, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक, दूसरा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. lender of last resort, lender of RBI is called as lender of last resort.
अच्छा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सो दैट मेजरली मीन्स क्या क्या कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग में क्या हो गया, ठीक, बैंकिंग में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ क्या प्रॉब्लम दैट इज आउट देयर, ठीक, तो आप क्या करते हैं, आरबीआई से दीज बैंक्स आर टेकिंग द मनी, ठीक, they are taking the money, and in order to क्या let them function properly, RBI is क्या lending them money, and that is why I'm क्या calling him as what, that is lender of last resort, ठीक। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिस बैंक इज ऑल्सो क्या रिस्पॉन्सिबल, दैट इज आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अच्छा एक चीज याद रखें, लेंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि इन टाइम ऑफ क्राइसिस एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कुड क्या अप्रोच आरबीआई फॉर हेल्प, एंड दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। If I'm talking about the next of the thing, I can also say that these are क्या, this RBI is very much responsible for the regulatory function as well, ठीक है, regulatory function of what, of banks, ठीक है, इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ बैंक्स, है ना, दैट मच यू शुड बी क्या अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, ठीक, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट ऑफ द थिंग, आई विल बी सेइंग ठीक, दिस एंटायर ऑफ द आरबीआई इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो ये सारे ना कीवर्ड्स हैं, ठीक है, क्या, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, दैट इज बैंक भी जहां पर अपना पैसा जमा करेंगे, इफ दे आर हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, दे विल बी क्या अप्रोचिंग व्हाट, दैट इज आरबीआई, एंड दैट इज व्हाई इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकर्स बैंक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकर्स बैंक, ठीक, तो इसमें वी विल बी डिस्कसिंग दैट इज हाउ थ्रू रेपो रेट, अभी मैंने बताया ही नहीं है व्हाट इज रेपो रेट, आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है, थ्रू रेपो रेट, थ्रू रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, through repo rate, through reverse repo rate, we can majorly say that is it is क्या carrying out these kind of transaction, that is how it can be called as what, that is bankers bank। अच्छा, if I'm talking about that is the next of the thing, how RBI could be helpful is through the concept of what is, that is it is referred to as lender to the government as well, it is क्या called as lender or banker to the government, banker to the government, in case if government is in requirement of money, ठीक है, they can obviously क्या approach RBI, ठीक है, RBI को अप्रोच करके पैसा लेते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन टेक मनी फ्रॉम आरबीआई, ठीक, सो दीज आर मेजरली द ब्रॉड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, है ना, आरबीआई का मोटा मोटा फंक्शन क्या है, इट इज वन ऑफ द इट इज द रेगुलेटर ऑफ व्हाट, ऑफ योर एंटायर ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, सो एंटायर हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर क्या रेस्ट अपॉन whom, रेस्ट अपॉन आरबीआई, है ना, ठीक, सो प्लीज रिमेंबर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब एक चीज आपको थोड़ी सी और बता देते हैं, कंसेप्ट ऑफ क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कंसेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस एंटायर ऑफ द नेम वेरी ऑफन, ठीक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक चीज याद रखना, देखो एक कंसेप्ट होता है इन्फ्लेशन, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, ठीक है, जनरल राइज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, आई एम क्या, जो महंगाई होती है उसको मैं क्या बोलता हूं, इन्फ्लेशन, ठीक। इन्फ्लेशन की टारगेटिंग, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन की टारगेटिंग, हम लोग यूजुअली कितना करते हैं, ठीक, 4% +-2, 4% +-2% वी आर क्या डूइंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अगर मैं इसे बात करूं, ठीक है, आई टेक यू टू डायरेक्टली टू द आरबीआई का वेबसाइट ओनली, ठीक है, आरबीआई के वेबसाइट में मैं आपको क्या जाके दिखाता हूं, देखिएगा, ठीक, सो दिस इज योर आरबीआई का वेबसाइट, ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं किसका वेबसाइट है, देखिए m.rbi.org.in, ठीक है, आरबीआई का वेबसाइट है ये, ठीक, इसमें इफ आई एम सेइंग दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ठीक, इट इज अ 6 मेंबर बॉडी, ठीक है, 6 मेंबर की बॉडी होती है, पहले किसके अंदर है, दैट इज सेक्शन 45, ये याद कर लेना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या सेक्शन 45 ZB ऑफ अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड्स फॉर द एम्पावर्ड 6 मेंबर कमेटी, ठीक है, ऑफ मॉनेटरी 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, है ना, दैट यू शुड बी क्या अंडरस्टैंडिंग, ठीक, 6 मेंबर की कमेटी होगी टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये सारे क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, ठीक, so whether monetary policy committee is having a statutory backing, yes it is having a statutory backing, it is backed by the law of the government, that is RBI Act of 1934, where it is written that is there will be 6 members, so it will be out there, where it will be out there in your
आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के सेक्शन 45Z(b) में लिखा हुआ है कि क्या देयर विल बी 6 मेंबर कमिटी हु विल बी इन दिस एंटायर ऑफ द थिंग। ठीक, अच्छा, कौन कौन मेंबर होता है? एक चीज याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या हर जो मेजर डिसीजन होगा, ठीक है, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, ठीक, कितना इन्फ्लेशन रखना है, क्या रेपो रेट रखना है, क्या रिवर्स रेपो रेट, ये सब हमें रखना है। सो दैट एंटायर ऑफ द थिंग, ठीक, ये सारे क्या ऑब्लिगेशंस वगैरह कौन पूरा करता है? इट इज व्हाट, इट इज डन बाय हुम, इट इज डन बाय योर आर इट इज डन बाय आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अच्छा, इसमें इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर के 6 मेंबर्स दैट आर आउट देयर, ठीक, 6 मेंबर हैं क्या? गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक, इसमें याद रखना दैट इज देयर विल बी 3 मेंबर्स ऑफ आरबीआई एंड 3 मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या 3 मेंबर्स ऑफ आरबीआई रहेंगे और 3 मेंबर्स किसके रहेंगे? गवर्नमेंट के रहेंगे। बट इन केस ऑफ टाई इट विल बी द प्रेरोगेटिव ऑफ आरबीआई गवर्नर की जो वो डिसीजन लेगा दैट विल बी फाइनल। ठीक, 3 मेंबर, 3 मेंबर ऑफ आरबीआई, 3 मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। इन केस ऑफ टाई आरबीआई विल बी टेकिंग द फाइनल डिसीजन। ठीक, अच्छा, सो गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन। ठीक, नंबर सेकंड इज डेप्यूटी गवर्नर। ठीक, डेप्यूटी गवर्नर आपका आरबीआई का मेंबर होगा। ठीक, वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ठीक, दिस यू हैव टू रिमेंबर कि कौन है? वन ऑफिसर ऑफ योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी आउट देयर। ठीक, अच्छा, ये तीन जो 4, 5, 6 हैं, दीज आर योर मेंबर्स दैट आर नॉमिनेटेड बाय व्हाट, दैट इज गवर्नमेंट। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ठीक, नंबर 5th इज योर जयंत आर वर्मा, प्रोफेसर IIM अहमदाबाद, एंड 6th इज शशांक भिड़े, ठीक, सीनियर एडवाइजर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक, सो दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वी विल बी क्या सीइंग दिस एंटायर ऑफ द टर्म वेरी ऑफन इन अवर न्यूज़पेपर्स। ठीक, अच्छा, बाकी बोलता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी रेपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ये भी मैंने आपको बताया क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक, क्या करती है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है इंडिया में। ठीक, ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज 1 वोट एंड इन द इवेंट ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द वोट गवर्नर हैज अ सेकंड और कास्टिंग वोट। दैट थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ टाई कौन करेगा डिसाइड? आपका गवर्नर विल बी डिसाइडिंग। ठीक, ईच मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी राइट्स अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर द वोटिंग एंड दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक, दूसरा ये क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे हमें डिस्कस करने हैं, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हम वी विल बी कैरिंग आउट थ्रू रेपो रेट। ठीक, अभी नाम से मत घबराना। ठीक, रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कॉरिडोर में क्या मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR एंड OMO, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक, सो दीज ऑफ द थिंग्स विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। ठीक, आज मेरा बताने का पर्पस ये था दैट आई शुड बी गिविंग यू अ ब्रीफ काइंड ऑफ जिस्ट कि भैया व्हाट इज दिस आरबीआई ऑल अबाउट, व्हाट आर द फंक्शन दैट इट इज डूइंग। ठीक, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप जब भी आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखेंगे न्यूज़पेपर में, यू विल नॉट बी क्या स्कैर्ड। ठीक, आपको पता है उसमें कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर ऑफ आरबीआई, 3 मेंबर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, व्हाट आर दीज टूल्स? From the next of the class, what we will be doing, we will be having a certain kind of discussion on these kind of tools. ठीक है, देखते हैं क्या? तो most probably we will be doing it in this manner only कि एक एक टूल उठाएंगे और उस पर we will be having a detailed discussion. ठीक, ठीक, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक, एक यूपीएससी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन एक तो जस्ट वेट अ सेकेंड, 1 मिनट रुकना। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, द बेसिक आइडिया ऑफ द लीड बैंक स्कीम। ठीक, पुराने के टाइम पे क्या 1960s के आसपास आपका लीड बैंक स्कीम आया था। 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी रिसेंटली आई गेस 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटिशन हुआ है 2012 एज वेल एज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट ईयर, बट येस 2020 आई गेस एज वेल, है ना। 2020 की पहले ही है। ठीक है, माइनस इसी के आसपास का है ना, इन 2-3 सालों में दिस अगेन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक, सो लीड बैंक स्कीम वैसे तो क्या बहुत पुराना है, बट स्टिल एक बार देख लो, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, क्या द बिग बैंक्स शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट, दैट वाज नॉट लीड बैंक स्कीम ऑल अबाउट। देयर शुड बी अ स्टिफ कंपटीशन अमंग द वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक, दैट इज ऑल्सो नॉट द केस। इंडिविजुअल बैंक्स शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, एंड दिस इज क्या
the right thing. ठीक है, this is the right answer. ठीक है, all the banks should make intensive efforts to mobilize deposit. This is also not the case. ठीक, so lead bank scheme का क्या था major, that every of the individual bank should be adopting one particular district for intensive development. ठीक, so आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं. Rest will be doing in the next of the class. ठीक, and this is my telegram group. If you want to join, yes, obviously you can. That is Sammy2908. ठीक, many of the students are majorly the part of this entire of the group. ठीक, so that's it for today's class. Rest will be doing in the next of the class. और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. Why? Because UPSC is not a game of IQ, it is a game of EQ. चलो बाय बाय बच्चा, see you in the next class. Bye.